تو یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے بلوچستان کے حوالے سے، جہاں پر جو ہیں آٹے کی جو ہیں قلت پیدا ہو گئی ہے بلوچستان کے حوالے سے، خاص طور پر پورے صوبے میں وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں، 2 روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ اس حوالے سے جو ہے وہاں پر جو مافیاز ہیں، آٹا مافیاز، وہ بھی جو ہے سرگرم ہیں، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے، بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ ان حوالے سے جو ہے کوئی بھی اقدامات جو ہے نہیں کر پا رہی، اور ان مافیاز کو جو ہے نہ تو کنٹرول کر پا رہی ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایکشن لے رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے بلوچستان کے حوالے سے، پھر مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بلوچستان میں آٹے کی بحران کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ آٹے کی قیمت میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ زرعی علاقوں سے گندم جلدی غائب ہو گیا۔ گندم اسٹاک کرنے والی سرکاری ملز بھی خالی دکھائی دینے لگے۔ پاسکو ڈیرہ الیار بھی ویران ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان کی گندم بذریعہ ٹرک ٹرالے افغانستان کی جانب لے جانے لگے۔ چکی مالکان کی کاروبار میں بھی کمی آ گیا۔ آٹا تیار کرنے والے چکی مالکان پریشان دکھائی دینے لگے۔ دوسری جانب زمیندار طبقے نے بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ میر حسن خان جمالی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حکومت صوبے کی ضروریات کو پوری کرے، بعد میں گندم امپورٹ کیا جائے۔ بالکل آٹے کا بحران میرے بھائی پیدا ہوگا۔ دیکھیں نا، پہلے تو آپ پاکستان کے انٹرنل مسئلے حل کریں۔ آپ کے پاس یہاں لوگوں کی گندم پرائسز آپ امپورٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک زمیندار کو فائدہ ہے لیکن ایک عام شہری کو نقصان ہے۔ میں ایک زمیندار ہوتے ہوئے بھی یہی بولوں گا کہ پہلے ہمیں اپنے ملک کو ترجیح دینی چاہیے، اس کے بعد ہمیں امپورٹ کو دیکھنی چاہیے۔ بلوچستان میں اگر گندم کی گئی ہے تو وہ بلوچستان کے ہی لوگوں کا حق ہے، اور ان کو ریٹ بھی اچھا ملنا چاہیے، نہ کہ لہٰذا کہ وہ سندھ میں جائیں یا پنجاب میں جائیں، کیونکہ ہے ہی یہی، میں نے جیسے پہلے آپ کو گزارش کیا تھا، یہ 3 ڈسٹرکٹس ہیں جن میں اریگیشن کی آبادی ہوتی ہے، باقی ڈسٹرکٹس میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ امپورٹ کرتے ہیں تو یہاں سے جو گورنمنٹ ہے وہ سستے ریٹوں پہ لیتی ہے گندم۔ مثال کی بات ہے 1800 روپیہ پر من میں لے گی ایک کسان سے یا ایک زمیندار سے، اور اس کو جا کے 2500 پر من میں امپورٹ کرے گی، اور وہ فائدہ سارا حکومت کو جائے گا۔ چلیں بے شک حکومت کو چلا جائے، لیکن اسی ذریعے سے کہ زمیندار کو تو ریلیف دی جائے، بلوچستان کے لوگوں کو ریلیف دی جائے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز پھر میں دوبارہ عرض کروں گا نظر نہیں آ رہی۔ حکومتی عدم توجہی یا پھر مفاد پرستی بلوچستان میں قحط سالی پیدا کر سکتی ہے، جو کہ مزدور طبقے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے اور گندم کی سپلائی کو دیگر ممالک کے لیے روکا جائے، تاکہ آگے چل کر غریب عوام آٹے کی بحران یا پھر مہنگائی کی بوجھ سے بچ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصری بگٹی، اسٹار نیوز، جعفر آباد۔ جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، ہم نے آپ کو بلوچستان کے حوالے سے مہنگائی جو وہاں پر جو ہے آٹے کا جو قلت ہوا ہے، وہاں پر جو آٹے کا بحران ہوا ہے، اس حوالے سے ہم نے آپ کو رپورٹ دکھائی کہ وہاں پر جو ہے کیا آٹے کی قلت ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہو گیا ہے کہ اب آٹا بھی نہیں مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ اگر کر رہی تو وہاں کیا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بلوچستان سے مصری بگٹی۔ السلام علیکم مصری بگٹی صاحب۔ دیکھا ہے جو گندم کو دیگر ممالک میں روانہ کیا جا رہا ہے، ہم نے کافی ٹرک ٹرالے دیکھے ہیں جو افغانستان کی جانب رواں تھے۔ حکومت کی ایک پالیسی کے مطابق ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک گندم منتقل کرنے پر پابندی عائد ہوتی ہے، لیکن بلوچستان میں بالکل قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آٹے کی قیمت میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابھی تو گندم کی سیزن ابھی ختم ہوئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی جو بہت ساری مشکلات ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جو چکی مالکان ہیں جہاں پر آٹا صاف کیا جاتا ہے، آٹا بنایا جاتا ہے، وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، ان کی کاروبار متاثر ہے۔ تو حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں بلوچستان میں قحط سالی پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا مصری بگٹی صاحب، آپ نے اپنی بات میں یہ فرمایا کہ وہاں پر جو ہے ٹرالے جو ہے زیادہ تر جو ہے افغانستان کا رخ کر رہے ہیں، کیا اس پر جو بلوچستان کی حکومت ہے کیا اس پر ایکشن نہیں لے رہی کہ یہ کون افغانستان کی طرف کون بھیج رہا ہے یہ آٹا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت خود اس میں ملوث ہے۔ حکومت کی جو جانب سے خود آٹا جو ہے نا وہ دیگر ممالک میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے علاوہ جو چینی کا بحران پیدا ہو گیا، تو یہ حکمرانوں کی جو پالیسیاں ہیں یہ غلط ہیں۔ یہ خود جو ہے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو ضرورت پڑتی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے، پھر مہنگی قیمت میں دوبارہ ان کو لینا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو غریب عوام ہے، جو دیہڑی دار مزدور ہیں،
वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। जो सरकारी मुलाजिम हैं या जो जमींदार लोग हैं वो तो गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो रोजमर्रा कमाने वाले और खाने वाले लोग हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दाम करनी चाहिए, अपनी गंदम को जखीरा करना चाहिए, अपनी गंदम को महफूज करके रखा जाए ताकि आने वाले वक्त में आटे की बहरान पैदा ना हो और महंगाई पर कंट्रोल पाया जा सके। जी अच्छा मिस्टर भुट्टी, ये भी फरमाइएगा कि जो वहाँ पर ज़रई इलाके है, वहाँ पर फ्लोर मिल्स है, उसकी क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी आटा गायब लगा पड़ा है या वहाँ पर आटा जो है वो मौजूद है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो जो दुकानें हैं मैं समझता हूँ आटा मौजूद है, लेकिन दिन ब दिन इजाफा कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इस महंगाई के हवाले से समझा जा सकता है कि जो गंदम है वो गंदम जो है ना वो अभी बलूचिस्तान में मौजूद नहीं है, कुछ सिंध ने खरीदा है। इसके अलावा जो बाकी जो गंदम था वो ट्रक ट्रालों के जरिए मैं समझता हूँ करीबी जो ममालिक हैं वहाँ मुंतकिल किया गया है, वहाँ फरोख्त कर दिया गया है। तो जो फ्लोर मिल रहे हैं मैं समझता हूँ इस वक्त तो अगर उनके पास कुछ गंदम मौजूद हो और वो अपनी मनमानी कीमत से आटा दुकानदारों को फरोख्त कर सकें, लेकिन आगे चलकर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बलूचिस्तान हुकूमत को खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए और ताकि गंदम रखा जाए और गरीब आवाम के लिए आगे चलकर मुश्किलात पैदा ना हो। अच्छा, ये जो आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ है उस पर फ्लोर मिल्स जो हैं उनके मालकान वो क्या कह रहे हैं? जी आप देखें, ये बलूचिस्तान बैकवर्ड एरिया है, यहाँ तो मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। हमने कोशिश किया है, हम ये जाफराबाद में पास्को मिल में गए हैं, हमने सोचा कि जो सरकारी मुलाजिम हैं जो फूड के ऑफिसरान हैं उनसे मालूम किया जाए कि ये गंदम हर साल बहुत बड़े स्टॉक रखे हुए होते थे। आज इस मरतबा जो है ना गंदम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जो पास्को मिल रहे हैं जो सरकारी मिल रहे हैं वो खाली हैं। तो हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन बलूचिस्तान में क्योंकि अभी जो बजट आने के करीब है, जो ऑफिसरान है वो जो गुज़श्ता जो साल था उसको क्लोज करने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए और हुकूमत को सब कुछ ठीक रिपोर्ट देने के लिए मसरूफ हैं। वो अपनी खुद जगहों में बैठकर जो है ना वो जून क्लोजिंग रिपोर्ट बनाने में मसरूफ हैं, लेकिन अपने दफ्तरों में आते नहीं है या अपने मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से जो दुकानदार हैं या फ्लोर मिल रहे हैं वो दुकानदार तो मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ऊपर से जो चीज़ महंगा मिलेगा तो जाहिर है यहाँ कीमत हमें भी बढ़ानी पड़ती है, लेकिन जब फ्लोर मिल वाले हैं वो तो कुछ मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। हमने ये जो चक्की मालकान थे जो आटा गंदम से आटा साफ करते थे बनाते थे उनसे पूछने की कोशिश की, उन्होंने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया है। लेकिन जमींदार लोग हैं वो कहते हैं कि अगर गंदम इंपोर्ट किया जाए तो जमींदारों को फायदा है, लेकिन इसमें फिर भी बलूचिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगे। जमींदार लोग भी तहफ़्फ़ुज़ात इस इंपोर्ट पे जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले सूबाई हुकूमत अपनी ज़रूरियात पूरी करे, उसके बाद जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा हो तो चीज़ें इंपोर्ट कर सकती हैं। ये जो आज इंपोर्ट किए जा रहे हैं बाद में एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो रेट बढ़े हैं आटे के, अगर आटे के रेट बढ़े और कुछ इलाकों में जो है आटे का जो है बोरान भी पैदा हो गया है, ये भी खबरें आ रही है सामने, तो इस हवाले से हुकूमत जो है बलूचिस्तान की उनका क्या मौक़िफ़ है? क्या उन्होंने कोई कमेटी बनाई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत इस तमाम सूरत हाल से बेखबर दिखाई दे रहा है और मैं समझता हूँ अभी जो जून क्लोजिंग है और अपना वो रिपोर्ट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो अपने ऑफिस में बंद कमरों में बलूचिस्तान ग्रीन ट्रैक्टर वगैरह की स्कीमात की कुरानंदाजी करके अपने मनपसंद अफराद को निकाल के ट्रैक्टर वगैरह दे रहे हैं ताकि लोगों की जो है ना हुकूमत की तरफ तवज्जो कम हो, क्योंकि बलूचिस्तान से आप जानते हैं कि 40 अरब से ज्यादा बताया जा रहा है कि जो रकम है वो लैप्स हुआ है और तरक्याती कामों के नाम पर अभी सिर्फ कागजी कार्रवाई में दिखाई दे रहे हैं। 3 साल मौजूदा हुकूमत को हुए हैं, इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुए हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत बलूचिस्तान इस वक्त अपनी कारकर्दगी को सिर्फ कागजों में बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो अहम इशू है आटे की बहरान है, इसकी तरफ कोई हुकूमत की तरफ से तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत तवज्जो दे और ये जो आटे की बहरान पैदा होने के लिए जा रहा है तो आगे चलकर बलूचिस्तान में थर वाली सूरत हाल पैदा ना हो, कैद साली पैदा ना हो, ताकि इस मुश्किलात को जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी 1 साल में, क्या बलूचिस्तान में पहले भी आटे का जो बहरान हुआ था? क्या ऐसी कोई बात हुई थी वहाँ पर पहले भी, या ये अभी बहरान हुआ है? इस तरह के मुश्किलात होते रहे, लेकिन इस मरतबा मैं समझता हूँ
लोगों की जिंदगी को खतरा है। ये मौजूदा जो हुकूमत है, इनकी पॉलिसियों की वजह से अब लोग मौत को तरजीह दे रहे हैं, लोग मरने को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास कमाई के लिए जरिया कोई नहीं है, रोजगार के तमाम जरिए बंद हो गए हैं, महंगाई अरूज पर है। और इसके अलावा जो अहम इशू है, अब जो गंदम का मामला है, ये गंदम के मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आगे चलकर मैं समझता हूँ ये मौजूदा हुकूमत कौम के लिए, मुल्क के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करेंगे। इस वक्त जो मईशत के बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं, इसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी महंगाई में मईशत तबाही की तरफ गामजन है। हुकूमत को 3 साल हो गए, लेकिन हुकूमत अवामी मसाइल मुश्किलात को हल करने में कामयाब ना हो सकी। अच्छा, जिले इंतजामिया वहाँ ज़ाहिरी बात है, जिले इंतजामिया होती है, वहाँ पर डीसीज वगैरह होते हैं, और उसके साथ साथ जो तहसील में जो सिटी एसी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, वो क्या कह रहे हैं? क्या इस मामले को लुक आफ्टर नहीं कर रहे ये लोग? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो सब तैनात हैं। लेकिन बलूचिस्तान की बदकिस्मती ये है कि मैं समझता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मुल्क से चुनकर करप्ट ऑफिसरों को यहाँ जाफराबाद में तैनात किया जाता है तो शायद ये एक इल्जाम हो, लेकिन हमने देखा है कि ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इसने कभी किसी इशू पे निकलकर शहर में कहीं विजिट नहीं किया। आज भी जो दुकानदार हैं, जो होटल मालिकान हैं, अपनी मनमानी रेट लोगों से वसूल कर रहे हैं। कहीं चाहे फी कप जो बिल्कुल छोटे कप हैं, उनसे किसी से 35 रुपया वसूल किया जा रहा है, किसी से 40 रुपया वसूल किया जा रहा है। इसके अलावा सब्जी है, फ्रूट है, दीगर जो जरूरी एशिया है, उर्दूनोश हैं, उस पर मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। आज तक डिप्टी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने ये मुनासिब नहीं समझा कि शहर में जाएं, अवाम के मुश्किलात को चेक करें और उस पर तवज्जो दिया जाए। मैं समझता हूँ जितने भी ऑफिसर हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, वो अपने मनपसंद ऑफिसर तैनात करते हैं, उनके जरिए फिर वो कोशिश करते हैं कि अपने मनपसंद काम उनसे निकाला जाए, और जो उनका दिल चाहता है उसी तरीके से वो रिपोर्ट बनाकर बलूचिस्तान हुकूमत को पेश किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये डिप्टी कमिश्नर अगर तवज्जो देता तो इसके ऑफिस से बिल्कुल टच यहाँ पास्को मिल है, और उस पास्को मिल की तरफ तवज्जो नहीं दिया गया, वहाँ गंदम को चेक नहीं किया गया कि गंदम कहाँ गया है, गंदम कहाँ स्टोर की गई है, गंदम दीगर ममालिक में या दीगर इलाकों में किस तरह सप्लाई किया गया है। इससे पहले तो जिस तरह गंदम का सीजन शुरू हुआ था, तो हमने सुना था कि जो जिला इंतजामिया था, उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी किया था इस हवाले से कि गंदम एक जिला से दूसरे जिला तक मुंतकिल नहीं किया जा रहा है जाएगा। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि गंदम इतनी दूर जो ट्रक से ट्राले से लेकर जाने में कामयाब हो गए हैं। ये किसकी सरपरस्ती से हो रहा है? तो मैं समझता हूँ इंतजामिया बिल्कुल जाफराबाद में तो नाकाम दिखाई दे रहा है, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी शायद यही हाल होगा। जी मुसरी बुगटी साहब, आप बलूचिस्तान से के इलाके जाफराबाद से हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको ये रिपोर्ट दिखाई कि ये बलूचिस्तान का एक ज़िला है जाफराबाद, वहाँ से जहाँ पर जो है पूरे बलूचिस्तान में जो है, जाफराबाद में भी है लेकिन पूरे बलूचिस्तान में जो है आटे का जो है बहरान पैदा हो रहा है। इस हवाले से जो है उसमें आटे की जो कीमतें हैं उस पर मजीद इजाफा कर रहे हैं। वहाँ पर जो माफियाज हैं वो उन पर जो है बिल्कुल हावी हो गई है। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जो है चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही है उसके हवाले से, और गवर्नमेंट के जानिब से जो है वो उनको इस मसले को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि आपको जाफराबाद से मिसरी बुगटी ने बताया कि यहाँ से बलूचिस्तान से जो है आटे का जो ट्रेलर है वो अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है, मतलब इम्पोर्ट हो रहा है। जब बहरान आ जाएगा तो फिर यही गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि भाई बहरान पैदा हो गया है और हम जो है आटा जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं।